Hi, welcome to Topper's Goals. I'm your maths teacher and you are studying maths of class 10. We have in the previous videos covered a very important topic, that is trigonometry. I hope you have understood that. So today we will be continuing our journey with a new chapter, that is polynomials, which is a quite a big chapter and we will cover it in 4 parts. So today we will be doing the part 1 of polynomials. So let's start. So we will begin with the definition of polynomials. क्या होते हैं polynomials? पॉलिनोमियल्स एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें एक वेरिएबल होता है और उसके सर पर एक पावर होता है और कांस्टेंट टर्म्स होते हैं और कोएफिशिएंट्स होते हैं। कैसे दिखते हैं ये वाले पॉलिनोमियल्स? ऐसे दिखते हैं कि मान लो बहुत ओके आई गेस दिस ओके सो पॉलिनोमियल्स लुक लाइक दिस 5x square plus 3x plus 1 or say 3x minus 2. Okay, these are some polynomials. Now we will be studying these things in today's video. So we will begin with a very simple question, that is, if this given algebraic expression is a polynomial or not. So how we understand if a algebraic expression is a polynomial or not? See, we have 4 different terms in this polynomials. What are terms of a polynomial? The things that are separated with either a plus or a minus. Okay, so see, there are 4 different terms of these polynomials and we have 3 different operators between them. So a polynomial always has a degree. What is the degree of a polynomial now? Over here, the numbers 5, 4, 7, 9 are called the coefficients of the terms of the polynomials. And the x thing over here, the x is called the variable of the polynomial. Okay. So the highest power of x in this algebraic expression of a polynomial is called the degree of that polynomial. So over here, see, the highest power of x is 3. So the degree of this polynomial is 3 and it has a special name, that is, it is called a cubic polynomial. So a polynomial with degree 3 is called a cubic polynomial. Okay. So how to identify whether a number is a polynomial or not? If this numbers written along with the x term is a real number, that is one condition for a polynomial. See over here, 5, 4, 7, 9 are all real numbers. So they are, this is a polynomial. It can be also numbers like 4 by 3 or cube root of 7. These are all real numbers. We have studied that. So the coefficients can be these things, but they cannot be any other number except real numbers. There are other numbers also which are called complex numbers, which you haven't studied right now. So everything that you see over here should be a real number. Then only we will consider it as a polynomial. And there is also another condition for a algebraic expression to be a polynomial. What is that? ये डिग्री को एक नेचुरल नंबर होना पड़ेगा. आप लोग ये समझिए कि वो वाला डिग्री 5, मान लो 5x to the power half लिखा हुआ है. ऐसे वाले एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे. या फिर 7x to the power 4/3 लिखा हुआ है. ऐसे वाले एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स नहीं मानेंगे. हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर वाले पावर्स को ही, नेचुरल नंबर वाले डिग्री के लीनियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल्स मानेंगे. ओके, आप लोग समझे होंगे. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं देखूंगा. तो क्वेश्चन पर आते हैं, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप लोग जवाब दो, क्या एक पॉलिनोमियल है? हाँ, वाकई में ये एक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि देखो हर कोएफिशिएंट एक रियल नंबर है. ये x का पावर, जो भी पावर है, सभी नेचुरल नंबर्स है और इसका डिग्री भी नेचुरल नंबर है. तो ये एक पॉलिनोमियल है. सो इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल. I will write polynomial in short like this. So the number of terms of the polynomial. What are the number of terms? I have already said the
things that are separated with the operators like plus, minus, they are called the terms of the polynomial. So this is one term, this thing is another term, this thing is another term, and this thing is another term. So see, I have 4 circles over here, so there are 4 terms. ओके, आप लोग बहुत इजी चीज है ये, आप लोग तो समझे होंगे. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? अभी मैंने क्या कहा था कोएफिशिएंट्स के बारे में? एक्स के बाजू में जो लिखा हुआ है उसको हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं. तो एक्स क्यूब के बाजू में क्या लिखा हुआ है? 5. तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 5 है. अभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पर हम लोगों को साइन और नंबर दोनों कंसिडर करना पड़ेगा. एक कॉमन गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो सिर्फ कह देते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, पर वो गलत है. आप लोग ये समझ लो कि हम लोग जो साइन है उसको भी कंसिडर करेंगे. मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर -4 है. ये माइनस अगर नहीं लगाया तो तुम लोगों का माइनस हो जाएगा मार्क्स, ठीक है ना? अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 7. और कांस्टेंट टर्म जो कि कोई भी एक्स के बाजू में नहीं लिखा हुआ, एक्स का कोई पावर नहीं है 9 के बाजू में, देखो तो ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है जो कि अकेला है. 9 देखो अकेला बैठा हुआ है, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, एक्स का पावर नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है -9. साइन का ध्यान जरूर रखना. और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है? जो एक्स का हाईएस्ट पावर है इस लीनियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, वही डिग्री होता है, मतलब कि 3. ओके, तो चलो आगे चलते हैं. आप लोग समझ गए होंगे वो वाला स्लाइड. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं? The types of polynomials can be classified on the basis of 2 things: the number of terms in the polynomials and the degree of the polynomial. मैंने पिछले स्लाइड में ही कहा था एक चीज, वो देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ऐसे ही ये क्लासिफिकेशन, ये डिग्री वाले क्लासिफिकेशन के अंदर आता है. तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल कहा जा सकता है, बाइनोमियल कहा जा सकता है, और ट्राइनोमियल कहा जा सकता है. मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक ही टर्म हो. एग्जाम्पल के खातिर पर देखो, एग्जाम्पल 7x है, 7x का पावर 5. अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है, ये भी एक पॉलिनोमियल है जो कि है मोनोमियल. अभी बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म. देखो 2 n इक्वल्स टू 2, मतलब कि अगर 2 टर्म है इसको हम बाइनोमियल कहेंगे. कैसा? मान लो कि कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 8x टू द पावर 4 माइनस 7x. ये एक पॉलिनोमियल है जो कि बाइनोमियल है, मतलब 2 टर्म. देखो यहाँ पर एक टर्म और यहाँ पर एक टर्म. और ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होंगे. 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ये एक ट्राइनोमियल है. और हम लोग पिछले वाला जो एग्जाम्पल किया था उसमें देखो 4 टर्म थे, तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रोनोमियल. बहुत सिंपल, ऐसे चलता जाता है जितने भी टर्म्स हो. तो अभी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बात कर लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल वो भी बहुत तरह के हो सकते हैं. यहाँ पर सिर्फ 3 लिखा हुआ है. अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर. कैसा? एग्जाम्पल देखते हैं. एक एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल क्या होगा? आप लोग बताओ, मैं लिखने से पहले बताओ. हाँ, 5x. ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है 5x, मतलब कि डिग्री 1 होगा, x का पावर में 1 होगा. क्वाड्रेटिक, ये वाला एग्जाम्पल ही क्वाड्रेटिक है. एक देखो डिग्री 2 है, मतलब कि इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं. और इस चैप्टर में हम ऐसे वाले पॉलिनोमियल्स जो कि डिग्री वाले 2 है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे. वो पार्ट 2 पार्ट 3 में आएगा. तो अभी क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 हो. मतलब एक एग्जाम्पल देखते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 9.
अभी क्वाड्रेटिक में या फिर कोई भी पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि सभी टर्म्स हो। मतलब देखो यहाँ पर x का पावर 2 है पर x का पावर 1 मिसिंग है, तो वो चीज कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सभी पावर्स होने पड़ेंगे, पर हाईएस्ट पावर को 2 ही होना पड़ेगा। ठीक है ना? ये वाला एक कॉमन मिसकंसेप्शन बहुत स्टूडेंट्स में रहता है। और क्यूबिक, वैसे ही क्यूबिक वाला एक पॉलिनोमियल मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। कैसा? 5x क्यूब माइनस 6x प्लस 21, ये एक पॉलिनोमियल है जो कि क्यूबिक है। ठीक है ना? तो ये वाला हो गया। अभी पावर 4 भी हो सकता है, डिग्री 4 भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम? बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं उसको, जो कि जिसका डिग्री 4 हो। तो वो तुम लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। हाँ, ये वाला छोटा सा स्लाइड है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्या होगा, इसका डिग्री कितना होगा और इसका नंबर ऑफ टर्म्स देखने से ही पता चल रहा है। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, आप लोग नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? ये देखो, एक टर्म और दो टर्म्स, सिंपल। डिग्री कितना है? देखो, एक्स का पावर किस में ज्यादा है, 2 या 3? तो 3 बड़ा है, तो इसका डिग्री 3 होगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान। ये वाला प्रश्न आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस क्या होता है पॉलिनोमियल में? हम लोग पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स में देखे है कि 5x² प्लस 6x माइनस 3। अभी x यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल वाला कोई सा भी नंबर ले सकता है। तो जिस नंबर के लिए ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, उसको हम इस पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे। मतलब कि देखो, अगर मैं ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मानता हूं, ठीक है ना? अभी अगर इसमें x की जगह तुम 1 या 2 डालो तो क्या होता है? देखो, पुट x इक्वल्स टू 1। अगर हम 1 डालें इस क्वेश्चन x की जगह, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना होता है? देखो, 0 होता है। तो x की जगह जो नंबर डालने पर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, उसको हम पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। मत इसको हम रूट भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। ये दो टर्म्स एक ही है, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो x की जगह 1 डालने पर ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। तो इसके लिए x इक्वल्स टू 1 को इस पॉलिनोमियल का रूट या फिर जीरो बोल सकते हैं। अभी वैसे ही अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में ही x की जगह पर 2 डालते हैं, तो क्या होता है? देखो, 2 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना होगा? ये 4 माइनस 6 प्लस 2। अभी फिर से देखो, ये 0 हो रहा है। तो मतलब कि इसमें x की जगह 2 डालने पर भी ये एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है। तो इसलिए 2 भी इसका एक जीरो या रूट है। समझ गए? तो वैसे ही पॉलिनोमियल्स के रूट हो सकते हैं, पर सभी पॉलिनोमियल्स के रूट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना? सभी पॉलिनोमियल्स के रूट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। रूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो if one of the zeros of the quadratic polynomial this thing is -3, then the value of a is। तो मैंने रूट या जीरो के बारे में क्या कहा? क्या है एक रूट और जीरो? जो नंबर x की जगह डालने पर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, उसको हम रूट कहेंगे। मतलब कि a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, जो नंबर x की जगह डालने पर ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, उसको हम रूट कहते हैं। तो यहाँ पर बोल ही दिया हुआ है कि -3 इसका एक रूट है। मतलब कि x की जगह -3 डालने पर ये वाला एक्सप्रेशन 0 होगा। बहुत आसान। तो पुट
x equals to -3, and since x equals to -3 is a root, क्योंकि इसका रूट x equals to -3 है, मतलब कि -3 डालने पर ये 0 होगा, तो a-1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मैं ये कह सकता हूँ -3, देखो x की जगह -3 डाला तो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो अभी इसको हम x सिंप्लीफाई करते हैं, -3 का स्क्वायर 9 -3a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब 9a -9 -3a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, 6a इक्वल्स टू 9 - 1 8। तो फिर a का वैल्यू कितना आएगा, 4/3, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, a इक्वल्स टू 4/3। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये -3 को इसके जगह डाला, x की जगह डाला और इसको 0 से इक्वेट किया, सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या ये नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय ग्राफ। अच्छा, तो आप लोग ग्राफ पेपर को यूज कर चुके होंगे पहले ही, वो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने में। तो अभी एक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ हो सकता है, मतलब मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मैं अगर एक्स स्क्वायर -3x + 2 ये वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो क्या करूंगा, मैं एक्स कोऑर्डिनेट पर एक वैल्यू लूंगा, उस पे इसका वैल्यू निकालूंगा और वो वाला वाई कोऑर्डिनेट पर प्लॉट करूंगा। मान लो कि मैंने हमने पिछले वाले स्लाइड पर देखा था कि इस वाले एक्सप्रेशन को अगर हम x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं और x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। तो ये हम यूज करते हैं, मतलब कि इसमें अगर हम x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 ये पुट करते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। तो x एक्सिस पर x इक्वल्स टू 1 और 2 पुट करने पर ये वैल्यू 0, मतलब कि ऐसा, ये दो पॉइंट। तो अगर हम ऐसे प्लॉट करते करते इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये वाला वैल्यू 2 होगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो फिर जिस पॉइंट पर ये पॉलिनोमियल के ग्राफ्स एक्स एक्सिस को काटते हैं वो होता है वो पॉलिनोमियल्स का रूट और जीरोस। क्या क्या बोला मैंने, द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसको नोट कर लेना, नोट। क्या, द पॉइंट्स वेर द ग्राफ of the polynomial intersects the x-axis, those are the roots or zeros of the polynomial। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर नोट कर लेना। क्या, the points where the graph of the polynomial intersects the x-axis, those are the roots or zeros of the polynomial। मतलब कि इसका ग्राफ देखो x एक्सिस को 1 और 2 पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है 1 और 2। वैसे ही कोई और पॉलिनोमियल मान लो जिसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसा होता है, कोई और पॉलिनोमियल, ये मान लो -1, ये 1 और ये 3। अगर इस वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को -1, 1 और 3 पर कट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि इस पॉलिनोमियल के रूट्स -1, 1 और 3 होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड था, तो आप लोग ये वाला पॉइंट जरूर नोट कर लेना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, तो आप लोग ये नोट कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।